Now select a comfortable posture for your body from the following. Simple cross-legged posture, full lotus posture, या half lotus posture. And select any one of the mudras of your hands. Gyan mudra या vitarag mudra. Position of knowledge. Keep your right hand on your right knee and your left hand on your left knee. Keeping the palms turned up. Let the tip of the index finger touch the tip of the thumb with slight pressure between them. Keep the other finger straight. Vitaraga mudra, position of knowledge. Keep your left hand in the central part of your lap and put your right hand on the top of the left hand. Both palms should be facing up. Close your eyes softly with your spine and neck in a straight line. We start the meditation session with the recitation of Om sound. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly, produce the sound through the nostril. Focus your mind on your breath. Relaxation. Focus your mind on your big toe of your right foot. Concentrate your mind on your big toe up to the top of the head. Throughout your body and suggest to your mind that it relax, relax, relax. From your big toe up to the top of the head, each and every muscle, nerve, tissue, cell is being relaxed. Relax, relax, relax. Give up your body, let your body become limp. Practice total relaxation with self-awareness.
Your mind and body have become free from all kind of stress, tension, and pain. Try to feel relax, relax, relax. Focus your mind on your navel. Inhale and experience your navel is being extended. When you exhale, your navel is being contracted. Try to feel subtle vibration taking place at your navel. Experience the expansion and the contraction of your abdominal muscles at your navel. Make it slow, deep, and rhythmic. If you are inhaling for 5 seconds, hold for 5 seconds. Exhale for 5 seconds. Hold for 5 seconds. You can recite with the opposite Navkara mantra. Use deeper and deeper concentration. अरे बंद करना Watch each incoming and outgoing breath. Give up your body. Synchronize your mind with your breath. When you breathe in, your mind goes in. When you breathe out, your mind comes out.
If thoughts are coming to your mind, touch your tongue to the palate and try to hold your breath for a while. Thoughts will go away. Again, start to perceive your breath. Take 2 long breaths. Rub your palms and charge your face. Om Arham, Om Arham. हम क्लास शुरू कर रहे हैं नवकार मंत्र के साथ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम्, ऐसो पंचनमुखार सर्वपावपणासनो मंगलाणञ्च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा शतनमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंतः विराजित निर्देशिका जी और ज्ञान की इस गंगा में अभिस्नात हेतु बर्मिंघम जैन आश्रम समाज। आज हम स्पेशल विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा स्वास्थ्य विज्ञान को लेकर के हम बर्मिंघम आश्रम में स्वास्थ्य के आधार पर हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो एक आता है मुद्रा थेरेपी, यानी कुछ मेडिकेटेड होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, और कुछ होते हैं विदाउट मेडिसिन। तो हम विदाउट मेडिसिन कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें है मुद्रा थेरेपी फर्स्ट नंबर। यानी मुद्रा थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, कलर थेरेपी, सुजोग थेरेपी, या फिर हम कह सकते हैं कि हीलिंग थेरेपी, योगा थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, ये सारी की सारी मुद्रा थेरेपी के अंतर्गत समाहित होती है। मुद्रा किसको कहते हैं, कौन सी मुद्रा से हमारे भीतर में कैसे परिवर्तन होता है, और ये मुद्रा का जो विज्ञान है वो आज नहीं, अभी नहीं, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन रहे हैं, और दोनों के समय से कहें या भगवान ऋषभ के समय से कहें तो ये मुद्रा विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल विज्ञान है। तो हम समझेंगे आज आपके सामने। हम आपको नाड़ी देखना भी सिखाएंगे, तो हम आपको कुछ मुद्राएं भी बताएंगे, चाहे वो पतला होने की मुद्रा हो, चाहे वो मोटा होने की मुद्रा हो, चाहे आपको वीकनेस लगे तो हम सेल्फ कैसे ट्रीटमेंट करें। तो ये हमारा सीरियल लगभग चलेगा 1 महीना तक, ये मुद्रा विज्ञान की क्लास, और इसके साथ ही कलर थेरेपी, सुजोग थेरेपी, और हम कहेंगे कि आपको इसके साथ अंक विज्ञान, और इसके साथ हम एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये सारी थेरेपी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए हम एक एक थेरेपी की चर्चा करेंगे एक एक संडे। तो आज हम पहले मुद्रा विज्ञान को लेते हैं। आप सबको पता है मुद्रा किसे कहते हैं, मुंद आनंद रातीति मुद्रा, यानी जिससे आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। आसन, प्राणायाम, बंध की सम्मिलित वह विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा उसका जागरण संभव हो, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा को समझने से पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने है फायर, वाटर, स्काई और एयर और अर्थ।
यानी हम जिसको अपनी भाषा में कहें तो पृथ्वी पानी वनस्पति आप कह सकते हैं। ये हमारा शरीर आकाश पृथ्वी पानी से बना हुआ है। यानी और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर वात पित्त और कफ से बना हुआ है, और वात पित्त कफ का भी आधार क्या है तो पंच तत्व है। अब कौन से तत्व मिलने से कौन सा तत्व बनता है, तो आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे पहले वात है, वात मीन्स वायु। वायु किससे बनता है, तो वायु का आधार है वो वायु तत्व हमारा। पहले ये पांचों अंगुलियों को हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा तत्व है। जो हमारा अंगूठा है उसमें है फायर तत्व यानी अग्नि तत्व। और आपको पता है अग्नि का स्वभाव क्या होता है, जिसके साथ मिक्स होने की कोशिश करती है अग्नि उसको अपने अंदर में कर लेती है। अपने अंडर में कर लेती है मतलब उसको अपना अस्तित्व हाई कर देती है, सामने वाले को खत्म कर देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अग्नि कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होती है। और दशवे कालिक के लिए अग्नि को क्या कहा जाता है, बाकी सब तो शस्त्र है, ये महाशस्त्र कहा जाता है। यानी बहुत तीखा तीक्ष्ण अस्त्र के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो ये अग्नि है वो सुतीक्ष्ण मानी जाती है, क्योंकि ये अग्नि कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होती है। मिक्स होती है तो सामने वाले को खत्म करके अपना अस्तित्व हाई रखती है। इसीलिए ये हमारा जो अंगूठा है इसमें कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। अभी हम आपको बताएंगे बुद्धि हमारी कैसे बढ़ती है, कैसे तत्वों के आधार पर। जिस प्रकार आप घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं और कहां से कहां कनेक्शन आप कर लेते हैं, आपके घर पे वाईफाई का डब्बा लगा है और आप अपने रूम तक भी उसका कनेक्शन ले लेते हैं। आप मोबाइल में ईयरफोन यूज करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं, कितनी दूरी तक भी ब्लूटूथ आपका काम करता है। क्यों करता है, उसमें वाइब्रेशन होते हैं। जिस प्रकार ये इलेक्ट्रिसिटी के वाइब्रेशन होते हैं उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशन होते हैं। अगर आपको अभी एक्सपीरियंस करना है कि हमारी बॉडी में वाइब्रेशन है तो पहले आप एक प्रयोग करेंगे ताकि आपको अनुभव हो जाए कि हमारे शरीर में कैसे जो तत्व है एनर्जी है वो कैसे हमारी बॉडी को प्रभावित करती है। तो आप सभी पहले आंखें बंद करके एक प्रयोग करेंगे, अपने अंगुलियों को आमने सामने रखेंगे, हथेलियों को। पूरा ध्यान आपका अंगुलियों के आगे के टिप्स पे रहेगा। देखें एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। आपके हाथ अपना आप आपके पास पास में आते जा रहे हैं, यानी एनर्जी लेवल। दूसरा आपको फीलिंग करना है तो आप अपने हाथों को इस फोल्ड में करिए। आप देखें कि आपके हाथ थोड़ी देर में कैसे भारी होते हैं। दूसरा आप देखें, आप अपने हाथों को ऐसे शेप में रखें नीचे धरती पे। देखिए आपके अंगुलियों के पूरे आगे के टिप्स पे आपका भार रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा। और देखिए कि आपके कैसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं हाथ से। यानी इस प्रकार ये एनर्जी का संचार पूरे शरीर में होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं ये हमारा जो अंगूठा है इसमें कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। जो दूसरा हमारा सेकंड फिंगर है जिसका नाम है, हम जिसको अपने हिसाब से कहें तो इंडेक्स फिंगर। और इंडेक्स फिंगर में कौन सा तत्व है, वायु तत्व। और आपको पता है कि वायु तत्व का काम क्या होता है, किसी की गलती बतानी होती है तो ये अंगुली यूज करते हैं। ये अंगुली अशुभ मानी जाती है, तो इसमें वायु तत्व होता है, एयर तत्व। तीसरा जो हमारा अंगुली का जो स्थान है वो है हमारा अग्नि तत्व, सॉरी स्पेस यानी आकाश तत्व। अपनी भाषा में कही तो आकाश। आकाश सबसे बड़ा है दुनिया में, इसलिए हमारी हाथ में सबसे बड़ी अंगुली कौन सी होती है, मिडल वाली। जो हमारी मिडल फिंगर है उसमें है आकाश तत्व। और उसके बाद में आपको पता है इसमें है हमारा अर्थ यानी भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व। और इस पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या होता है, जब रिंग सेरेमनी होती है, किसी की एंगेजमेंट होती है तो इसमें रिंग पहनाते हैं। क्यों इसमें रिंग पहनाते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक वे का अगर रूल देखे मुद्रा विज्ञान के हिसाब से तो इसमें पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी क्या करती है, आपकी हर हरकत को सहन करती है। आप उस पे पत्थर भी मारते हो, फल भी खाते हो, उसी पेड़ पे आप पत्थर भी मारते हो, लेकिन वो कभी रिएक्शन नहीं करती है, हर परिस्थिति को समता भाव से सहन करती है। इसी प्रकार जब एक पुरुष एक लेडी को एंगेजमेंट होती है तो इसमें रिंग पहनाता है, कारण है कि वो उसको प्रेरणा देता है कि परिवार में आएगी समस्या हो सकती है,
समस्याओं को हम नहीं बदल सकते हैं, सामने वाले व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और पृथ्वी की तरह सारी समस्याओं को सहन करते हुए, स्ट्रगल करते हुए हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी सोच को प्रभावित नहीं होने देना है, परिस्थितियों के सामने मनस्थिति को स्ट्रांग बना के रखना है पृथ्वी की तरह। तीस लास्ट है हमारा इसमें जल तत्व। आपको पता है हम स्कूल में आदि में इस अंगुली का यूज करते थे बाथरूम आदि जाने के लिए, यानी इसमें कौन सा तत्व है? जल तत्व। अब आपने पांचों तत्व समझ लिए, सबको याद हो गए होंगे। अंगूठे में हमारा फायर तत्व, अग्नि तत्व। फर्स्ट अंगुली इंडेक्स फिंगर में हमारा वायु तत्व, एयर तत्व। जो मिडल फिंगर है वो है आकाश, तो आकाश या स्पेस कुछ भी कह दो। और जो फोर्थ हमारी अंगुली है, या यूं कहें थर्ड अंगुली रिंग फिंगर, जिसमें है हमारा पृथ्वी तत्व, अर्थ तत्व, और लास्ट हमारा वाटर तत्व, जल तत्व। ये पांचों तत्वों को आपने समझा, अब आपको बहुत इजी हो जाएगा मुद्रा विज्ञान को समझना। अब इन पांचों तत्वों के आधार पर हमारा शरीर बना है वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों चीजें हमारे शरीर में जहां जहां हाई होती है, या जैसे ही इनका इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है? हमारे शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे ही वात, पित्त, कफ का शमन हुआ कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। यानी ये तीनों धातुओं का संतुलन होगा, बैलेंस होगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ। और इसमें से एक भी अगर विकृत हो गई तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हम सबसे पहले समझे कि कौन से तत्व के मिलने से कौन सा तत्व बनता है। तो आपको एरो के आधार पर दिख रहा है, जो रेड कलर है वो होता है पित्त। पित्त हमारा पीला कलर का होता है। जब बॉडी में ज्यादा हीट पैदा होती है, गर्मी ज्यादा पैदा होती है, तब हमारे शरीर में पिंपल्स निकलना, शरीर में फोड़े फुंसियां होना, ये सब कारण क्या है? कैंसर जैसी बीमारी का कारण अगर मूल जड़ है तो वो है हमारा पित्त। और ये पित्त किससे बनता है? सबसे ज्यादा बाहर का जितना फास्ट फूड है, जिसमें आप सबको पता है उसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नींबू का शत होता है। चाहे वह कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, या कोई भी चीज की बॉल ले लो, खाने के जितने भी जो भी फास्ट फूड है उन सब में होता है, क्या होता है? नींबू का शत। और नींबू का शत हमारी बॉडी में जाकर के हमारा पेट का जो स्टमक है वो एक थैली, प्लास्टिक की थैली जैसा बना हुआ है, और उसमें ये जो नींबू का शत बहुत मात्रा में जाता है। रोज रोज बाहर का खाना खाते हैं, उसमें थोड़ा सा वो लोग दाल में भी नींबू का शत डाल देते हैं, तो खट्टी हो जाती है, और वो खट्टा आपके शरीर के लिए जहर का काम करता है। आपके टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो शरीर में जाके आंतों में छेद कर देते हैं, और आगे जाके अल्सर भी हो सकता है और कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। तो बाहर का फास्ट फूड है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, जितने भी लिक्विड जूस है, लिखा हुआ होता है ओरिजिनल जूस, फ्रेश जूस, ये जितने भी सोडा की चीजें हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, लिम्का ले लो, थम्स अप ले लो, वो सारा का सारा हमारी बॉडी के लिए जहर है। आपको पता है इसको टॉयलेट क्लीनर भी बोलते हैं, जितने थम्स अप, लिम्का आदि। तो उस सब में नींबू का शत होता है, इसीलिए वो खटास कर दिया जाता है, और वो हमारे टेस्ट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन शरीर के लिए एक प्रकार का जहर है, जो आने वाले समय में हम बीमारियों का घर बनाएंगे अपने शरीर को। तो ये पित्त हमारे शरीर में बनता है जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है तब। यानी अग्नि बहुत ज्यादा विकृत होती है, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है, और उस समय आपने आइसक्रीम खा ली, तो क्या होगा? आपके आग जल रही है और आग में पानी डालोगे तो आग मंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको भूख लगी है, उस समय आप खाना नहीं खा के आप दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो उससे आपके शरीर में पित्त विकृत होता है, और वो पित्त आपकी अग्नि को मंद करता है, और आपके शरीर में बीमारियों का घर बना देता है। जो हमारा वायु है, यानी वात, वात मीन्स वायु, तो हमारी बॉडी में चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कह दो, गैस कह दो, ये सब किससे बनता है? हमारा आकाश और वायु, ये दो तत्वों के मिलने से वात की प्रॉब्लम होती है। यानी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस वायु हो गई, बहुत ज्यादा गैस की चीजें खा ली, बेसन की चीजें, बहुत ज्यादा मैदे की चीजें आपने खा ली, तो ये आपके क्या करेगी? बॉडी में वायु की मात्रा को बढ़ाएगी। पानी कम पीते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में वायु की मात्रा बढ़ जाती है। और कहा जाता है वायु से 80% बीमारियां होती हैं। तो सारी की सारी बीमारियों की जड़ अगर कहें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और तीसरा है हमारा कफ। कफ किससे बनता है? जल और
मतलब वाटर तत्व और हम कहें तो अर्थ तत्व यानी पृथ्वी तत्व, इन दोनों की मात्रा अधिक बॉडी में होती है तो कफ बन जाता है। कफ कम पीने से भी प्रॉब्लम, पानी कम पीने से हमारे शरीर में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्यादा ठंडा पानी पीने से हमारे बॉडी में कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस कफ के कारण हमारे शरीर में हमारे बाल है वो व्हाइट भी बहुत जल्दी होंगे, हमारे शरीर में झुर्रियां भी बहुत जल्दी पड़ेगी, और इस कफ के कारण हमारी मेमोरी भी बहुत फास्ट लॉस होगी। अगर हम चाहते हैं बुढ़ापे तक हमारे शरीर में कफ की मात्रा को कंट्रोल करना है ताकि बुढ़ापे तक हमारी मेमोरी बनी रहे, बच्चों की भी मेमोरी शार्प हो, तो उसके लिए जब भी पानी पिए और कफ बना है, जिस समय सर्दी का मौसम होता है उस समय आपके बॉडी में कफ की मात्रा ज्यादा है और आप फिर पानी भी पीते तो वो भी कफ बनाता है आपके शरीर में। आपने देखा होगा, आप गंदगी में टॉयलेट में अगर काजू किशमिश भी डालोगे तो क्या होगा, वो गंदगी ही कहलाएगी। इसी प्रकार जब बॉडी में कफ की मात्रा ज्यादा बनती है जुकाम के समय और आप सिंपल पानी पीते तो वो भी आपका कफ बनाता है। इसीलिए अपने इंडिया में ये एक प्रथा चली थी कि जब भी कफ वगैरह किसी को खांसी जुकाम होते थे तो उनको उकाली देते थे। उकाली का मतलब कलर पानी का चेंज कर देना, यानी पानी का कलर लाल और पीला कर देते थे। कभी अनार के छिलके की उकाली बना के देते थे। आजकल जो ग्रीन टी लेते हैं, ये ग्रीन टी क्या है, टाइप ऑफ एक उकाली है, हर्बली तो है क्या इसमें, वही तो तुलसी आदि चीजें होती है, अदरक सूखा होता है। तो ये सब हमारी जो इंडियन थेरेपी है, वो घर की उकाली आदि वो सबसे बेस्ट है कफ को निकालने की। यानी जब भी आपको कफ की ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठंड की ज्यादा प्रॉब्लम हो, और यहाँ जैसे यूके जैसे शहर देश में क्या होता है, ठंड ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर पानी कलर का प्रयोग करें, चाहे उसमें ग्रीन टी डालें, चाहे एक केसर का टुकड़ा डालें, चाहे आपको जो भी सुविधा हो, आपके घर में जो भी लौंग हो, इलायची हो, तो आप कलर चेंज करके पानी पिए, आपको 12 महीना में कफ की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आपका कफ बनेगा ही नहीं आपकी बॉडी में अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो ये हमने आपको वात पित्त और कफ के आधार पर बताया। अब हम आपको ले चलते हैं मुद्राओं के आधार पर, कौन सी मुद्रा करने से हमारे शरीर में क्या होगा। और ये मुद्राओं का जो विज्ञान है वो बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुराना कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो उसमें ऐसी ऐसी मूर्तियां मिली, ऐसे ऐसे पोस्चर में जो आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मुद्राओं के आधार पर आप देखते हैं कि कहीं पर भी सिंबल्स आदि होते हैं, आप अपने गाड़ी में से कहीं पर भी जाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन यंत्र, उसमें भी क्या होता है, सिंबल्स दिए जाते हैं। तो ये सिंबल्स टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि एक गेस्चर कह दो या फिर इसको मुद्रा कह दो, एक ही बात है। ये गैरंड संगीता में भी आता है, जो योग का सबसे प्राचीन हठ योग साहित्य के हिसाब से अगर हम देखें तो गैरंड संगीता के 3रे अध्याय में आता है मुद्राओं का वर्णन। और वहां पर कह दिया है कि जितने भी मुद्राओं का शरीर के अकॉर्डिंग, चाहे वो आसन की स्थितियां हो, चाहे मुद्राओं की स्थितियां हो, चाहे प्राणायाम की स्थितियां हो, वो सारी की सारी मुद्रा के अंतर्गत आती है। तो ये महर्षि गैरंड ने भी बहुत अच्छे से 3रे अध्याय में किया है। और मुद्राओं के आधार पर क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो संत के अनुसार, एक साइंटिस्ट हुआ है संत, और उन्होंने कहा है कि अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप अपने अंगुलियों के कंट्रोल के आधार पर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये मुद्राओं का जो करने का समय है वो कम से कम एक समय में आप 45 मिनट्स करें तो उसका बहुत फास्ट रिजल्ट आपके सामने आएगा। और इसको करने के लिए कोई समय नहीं है जरूरी कि आप खाने के बाद करें, खाने के पहले करें, लेकिन कुछ कुछ मुद्राएं हैं जो खाने से पहले करते तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। दूसरी बात है कि जब भी आप मुद्राओं के बारे में ध्यान रखें कि मुद्रा करते समय हमारे हाथ हमेशा आकाश की ओर ऊपर होने चाहिए। अगर आपने हाथ नीचे किए तो आपकी शक्ति, अर्थ में ग्रेविटी फोर्स है और वो आपकी शक्ति खींच लेगी। इसीलिए हमेशा मुद्रा करते समय इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे आप कि आपके हाथ हमेशा ऊपर की साइड हो ताकि उस मुद्रा का आपको रिजल्ट मिल सके। मुद्राओं का विज्ञान बहुत ज्यादा नहीं समझ के हम सोच रहे हैं कि मुद्राओं के बारे में ही समझे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा जाता है जैसा भाव वैसा श्राव, यानी आपका सिक्रेशन बॉडी में जैसा होगा उसके अनुसार आपका एक्सप्रेशन होगा। अभी मैं आप सबको बोलूंगी कि सभी अपने आप को सिर पे हाथ देके बैठेंगे, जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, सभी को इस पोस्चर की तरह बैठना है, इस पोस्चर की तरह। तो मैं देखती हूँ कि आप सब कैसे बैठते हैं, सभी बैठ के दिखाएंगे, वीडियो ओपन करिए।
जो अपना अपना वीडियो खोल सकते हैं, देखिए सभी ऐसे बैठ जाइए। इसको हमारी भाषा में मूर्ख मुद्रा कहते हैं हम। सभी एकदम बैठ जाइए, ऐसे लगे दुख का पहाड़ आपके ऊपर आ गया है। चांदनी जी का तो चेहरा लग रहा है सारा दुख आ गया। सबको भाव कैसे आ रहे हैं? नींद आ रही है, सो जाए बस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुद्राओं का इफेक्ट हमारे मन पर होता है। यानी आप स्ट्रेट बैठते, इसीलिए आपने देखा होगा मंदिर में कोई भी मूर्ति कभी भी आपने बेंड होते हुए नहीं देखी। हमेशा हर मूर्ति स्ट्रेट बैठती है। यानी अगर आप भी अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक संकल्प करें कि हम रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखेंगे। और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का एक ही उपाय है कि जब भी आप बैठे, आप नीचे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं, कहीं पर भी बैठे, आप अपना जो हिप्स का स्थान है उस स्थान पे एक छोटा गोल तकिया लेके बैठे। हमारे अर्चना जी ने हमको बर्मिंघम शहर की यात्रा करवाई, अरविंद भाई। बर्मिंघम आपके मंदिर में हमने देखा कि बहुत सारे आपके योगासन क्या वो बहुत सारे एक सीट जैसी बनी हुई है, और एक सीट हम वहां से ले आए आपके कि हम भी ये योगा सीट आपकी यूज करेंगे। और सही में उस पर बैठते हैं, ऑटोमेटिक आपकी कमर सीधी हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ता है। वो मेडिटेशन की जो सीट है आपकी बहुत ही अच्छी है, और मैं सोचती हूँ वो सबको यूज करनी चाहिए। लेकिन वो मेडिटेशन सीट आपके घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, तकिया सबके घर है। तो आप तकिया को फोल्ड करके थोड़ा मोटा बना दें और फिर अपने कमर के नीचे यानी हिप्स के नीचे लेके बैठे। आप अभी बैठना शुरू करें, देखें आपकी कमर ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। और किसी के घर तकिया नहीं हो तो कुछ नहीं, आप चादर को फोल्ड करके पूरा गोल बना के उस पे बैठ जाइए। थोड़ा मोटा होना चाहिए, आप दबने पर भी वो ऊंचा रहे, तो आपकी ऑटोमेटिक रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और रीढ़ की हड्डी सीधी होते ही आपके हार्मोन चेंज होंगे, और आपके हार्मोन चेंज होते ही आपके श्राव चेंज होंगे, और श्राव चेंज होते ही आपके भाव भी चेंज होंगे। तो अब हम समझेंगे कुछ कुछ मुद्राएं। बेनिफिट्स ऑफ वायु वरुण मुद्रा help to promote the water elements in the body. It helps in joint pain, arthritis, body odor and टेस्ट लूज, यानी एक्सट्यून में ये वेट लूज होना चाहिए। और रिलीज व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स और हार्मोन्स प्रॉब्लम ऑफ। आप जब भी अपने शरीर में ये सारे के सारे तत्वों से जुड़े हुए हैं, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम को हमारी बॉडी में जो चेंज करता है, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का संबंध हो और चाहे हमारा वेट हो, उन सबके लिए वरुण मुद्रा। वरुण का अर्थ क्या होता है? वरुण का संबंध किससे है? वरुण का संबंध हमारे सूर्य के साथ। यानी जब आप ये पांचों तत्व आपको दिख रहे हैं, ये पांचों तत्वों को जब आप ऊपर की ओर करेंगे तो क्या होगा? आपके बॉडी में वो तत्व की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी बैलेंस होने लग जाएगा। और जैसे ही आपने अपने ये फिंगर्स के जो टॉप भाग है, टोज के सॉरी फिंगर्स के जो ऊपर के टॉप भाग है, उस टॉप भाग को अगर आप नीचे में लगाते हैं तो क्या होता है? नीचे में लगाते ही वो तत्व कम होने लग जाता है। यानी आपको सीधा सा बताएं तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे वायु मुद्रा। यानी वायु मुद्रा के आधार पर हम कैसे अपने आप को ठीक करें, तो उसको समझने से पहले एक बॉडी का सिस्टम और आप समझ लें, और उसके बाद में मैं मुद्राओं पर आऊंगी। शायद समय 5 से 7 मिनट और है, तो हम पहले कोशिश करते हैं एक बार इस चित्र को समझ लें ताकि आप और अच्छे से अपने शरीर को समझ सकें। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। तो जो हमारा कफ का स्थान है वो हमारी बॉडी में कहां से है? चेस्ट से लेकर ऊपर का भाग। और कफ ठंडा के कारण होता है, और ब्लू कलर क्या है? हमारे शरीर में ठंडक देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कफ कोल्ड की जितनी दवाइयां होती है वो सब येलो या रेड कलर की होती है। कभी भी आपने ब्लू कलर की कफ की दवाइयां नहीं देखी। क्यों? क्योंकि ये येलो कलर सॉरी ब्लू कलर है, वो हमारी बॉडी में कफ पैदा करता है, ठंडक पैदा करता है, और ठंडक से हमारी बॉडी में कफ बनता है। उसके बाद में जो पित्त का स्थान है वो कहाँ है? हमारे आनंद केंद्र से, यानी चेस्ट के नीचे के, यानी स्टमक से लेकर के हमारा नीचे का यूरिन का स्थान है, वो स्थान हमारा पित्त का है। और जो हमारा पित्त भी निकलता है वो इतने ही स्थान से निकलता है, ज्यादा मात्रा में। और जो हमारा वात का भाग है वो है हमारा नीचे के भाग से लेकर घुटनों में। यानी जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले घुटने उसके इफेक्ट होते हैं। और पित्त किससे बनता है? तो जितनी भी आपको स्वीट चीजें हैं वो दिखने में स्वीट है, लेकिन वो बनाता क्या है आपके बॉडी में? आगे जाके
जितना भी मीठा है, चाहे मिठाइयाँ आदि, वो सब कफ क्रिएट करता है आपके बॉडी में। शुगर जितना है वो सारा का सारा कफ क्रिएट करता है, क्योंकि मिठाइयों में शुगर होता है और मिठाइयाँ घी तेल की बनी हुई होती है, तो वो कफ का कारण है। और पित्त किससे बनता है? तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सारी की सारी पित्त का निर्माण करती है। नमक आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना आपका ब्रेन बूढ़ा ज्यादा होगा। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है वो संडे संडे नमक छोड़े। आप देखें रामदेव बाबा को, कितने 25-30 सालों से वो नमक नहीं खा रहे और उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, रबड़ की तरह। कितना अच्छे से प्राणायाम करते हैं, ऐसे लगता है कि हम भी ऐसे बॉडी को मूव कर सकते हैं क्या। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है तब तक वो जैसा चाहे बॉडी को मूव कर सकता है। जैसे ही उसने नमक खाना शुरू कर दिया उसकी बॉडी में क्या आ जाता है, थोड़ा सा कठोरपन आ जाता है। यानी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे नमक ज्यादा खाते हैं। दूसरा चीज है कि नमक खाने से ज्यादा हमारा ब्रेन बूढ़ा होता है। आप देखें कि जिस दिन नमक खाओगे उस दिन बहुत विचार आएगा। जिस दिन आप बाहर का खाना खा के आते, किसी के घर का जीवन, किसी के शादी विवाह आदि का फंक्शन का ऑयली खाना आप खा के आते हैं, जिसको हम गरिष्ठ भोजन कहते हैं, उस दिन देखो आपका मन कितना चंचल होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी। और आप घर का सिंपल खाना खाते हैं, आपका मन थोड़ा शांत रहता है। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन आपका विचार पूरे शांत हो जाते हैं। और जिस दिन आयम्बिल करते हैं उस दिन बहुत शांति की अनुभूति होती है। तो नमक हमारे, इसीलिए जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर आदि होता है, हार्ट वालों को, सबको नमक पे कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि नमक हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। हमारे बॉडी को जितना नेचुरल नमक चाहिए उतना हमारे फल के रोटी में, नेचुरल अनाज में आ जाता है। हम ऊपर से जितना नमक लेके खाते हैं उतना हम अपने मेमोरी को तो लूज करते ही करते हैं, अपने ब्रेन को भी हम लूज करते हैं और साथ में हम अपने शरीर में बुढ़ापे को बुला रहे हैं। तो आप सब ध्यान रखेंगे कि ये जो कड़वी चीजें होती है, चाहे वो आपका पोमेग्रेनेट हो, चाहे आपका ये बीटर हो, करेला हो, ये कड़वी चीजें आपके शरीर में, आंवला, ये तीनों चीजें कहने में कड़वी होती हैं, लेकिन ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों को बैलेंस करने में सबसे बढ़िया हाथ इनका होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके शरीर में जो टेस्ट के लिए अच्छा है वो आपके शरीर के लिए जहर है, जो टेस्ट के लिए खराब है वो आपके शरीर के लिए अमृत है। अब आप अपने शरीर को अमृत देना है या विष देना है, ये आप अपनी इच्छा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि मुद्राओं के दो प्रकार। एक मुद्राएं होती हैं जो अंगुली के पोर के आधार पर होती हैं, और दूसरी जो मुद्राएं होती हैं वो हमारे यूं कहे कि कलाई को फोल्ड करके, जैसे आपको ये दिख रही है स्वामी विवेकानंद की मुद्रा, यानी ये कौन सी है, सेकंड टाइप की मुद्रा है। और अंगुलियों के आधार पर जो आपको ये दिख रही है ये फर्स्ट टाइप की मुद्रा है। तो ये हाथ आदि जोड़ना, क्षमा आदि करना, ये भी सब क्या है, मुद्रा है। लेकिन ये कलाई को फोल्ड करके जो बनाई जाती है उस मुद्रा को हम सेकंड टाइप की मुद्रा कहते हैं, और अंगुलियों के आधार पर जो हम मुद्राएं बनाते हैं वो फर्स्ट टाइप की मुद्रा है। अब हम आपको सीधा मुद्रा पे ही लेके आते हैं कि हम आपको आज दो मुद्राओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहली ज्ञान मुद्रा, यानी आपका ज्ञान मुद्रा हम किसको कहते हैं, जब आप अपनी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे पे लगाएंगे तो आपकी ज्ञान मुद्रा होगी। और योगियों की मुद्रा ये कही जाती है, ये वायु को कंट्रोल करने की मुद्रा कही जाती है। हमारे शरीर में वायु का बैलेंस करना है। किसी का सिर दर्द हो, कैसा भी सिर दर्द हो, अगर 10 मिनट वायु मुद्रा में आगे के टॉप भाग दोनों की अच्छे से दबा के अगर आप स्ट्रेट तीनों अंगुली को रख के बैठते 10 मिनट में आपका सिर ठीक हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका अग्नि तत्व है अंगूठे में और वायु तत्व है इसमें, और जैसे ही अग्नि और वायु का मिलन होता है आपकी मेमोरी भी शार्प होने लगेगी, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होने लगेंगे और आपका सिर भी ठीक होगा। और 100% इस मुद्रा का इफेक्ट है, करेंगे तो पता चलेगा, कहने से नहीं होगा। ये हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ाता है, यानी किसी के शरीर में अगर वायु तत्व कम है तो इसको भी ये बढ़ाने का काम करता है। इसको कम करना है, जिसके वायु ज्यादा बनती है तो वो ऑपोजिट मुद्रा करे, जिसका नाम है वायु मुद्रा। ये हो गया, ऊपर लगाओगे तो ज्ञान मुद्रा और नीचे दबाओगे तो वायु मुद्रा। और जिसको भी बहुत ज्यादा जोश जगाना है अपने शरीर में, बहुत ज्यादा आलसी है, जो बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं करता है, हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, थकान की बहुत अनुभूति होती है, तो उनके लिए ज्ञान मुद्रा सबसे बेस्ट मानी जाती है। और कभी भी कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट है वो वायु मुद्रा, यानी आपके बॉडी में ज्यादा गैस हो रही है तो आप वायु मुद्रा भी कर सकते हैं। तो आज का समय तो संपन्न हो गया है। आज हमने दो मुद्राओं के बारे में चर्चा की है, एक वायु मुद्रा, दूसरी ज्ञान मुद्रा।
ये वायु मुद्रा की ऑपोजिट है ज्ञान मुद्रा, लेकिन मुद्राओं के लिए सबसे फर्स्ट रूल है कि आप आगे के टिप्स को मिलाओगे। जब तक यहाँ पे प्रेशर नहीं दोगे, जब तक आपने स्विच पूरा ऑन नहीं किया, आपका लाइट, फैन, एसी, कूलर कुछ भी नहीं चलेगा। और जैसे ही आपने स्विच पूरा ऑन किया तभी आपका लाइट, फैन, एसी चालू होगा। इसी प्रकार आपने पूरा प्रेशर दिया तभी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी का वैसा ही मूवमेंट होने लगेगा, वैसे ही आपके हार्मोन सिक्रेशन होंगे। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमने आपके सामने 2 मुद्राओं की चर्चा की और अब हम भक्तामर का एक श्लोक लेके आएंगे आपके सामने। अरविंद भाई, पहले 5 मिनट क्वेश्चन लूं क्या मुद्राओं के, या पहले भक्तामर कर लें? पर ही कर लीजिए समझिए। पहले भक्तामर कर लेते, फिर 5 मिनट के बाद में एक श्लोक कर लेते हैं। कौन सा श्लोक है अरविंद भाई, बोलो। 7वां है ना, कि जहाँ 8वां कैश वाली 7वां या 8वां मैं भूल गया हूँ, समझिए मैं घर से बाहर हूँ। बताओ बताओ, आपको याद हो तो बताओ। नहीं, अच्छा 17वां या 8वां, 17th और 18th है। 18th चलो चांदनी जी, यू कैन रिसाइट श्लोक नंबर 19। 18th हो गया। चांदनी जी, यू कैन रिसाइट। नहीं, आपका वो अनम्यूट करिए। अच्छा सॉरी, मैंने सबको, वो बीच में आवाज आ रही थी ना। हाँ जी, हाँ सामने। हाँ, अलाउ है, सभी अभी बोल सकते हैं, ठीक है। ओम शिवाय। चांदनी जी स्टार्ट। शर्वरीषु शशिनानि विवस्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभार नम्रै। वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट। चलो हम अर्थ भी करा देते हैं आपको। मिनट में अर्थ करा के फिर हम आपको मुद्राओं का जिज्ञासा और समाधान करेंगे। चलो, किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, यानी चंद्रमा का विवेचन करते हुए बता रहे हैं कि सर्वऋषु, सर्वरी मीन्स रात्रि, रात्रि में चंद्रमा, और अन्नी मीन्स दिन, विवस्वतावा मीन्स सूर्य, यानी रात में चंद्रमा से क्या और दिन में सूर्य से क्या। यानी रात को चंद्रमा की जरूरत होती है, दिन में सूर्य की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, कि हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा जब उदित होता है तो तमस्सु दलेसु, तमस्सु मीन्स अंधकार रूपी, जो हमारे भीतर मोह रूपी अंधकार है वो दलितेसु, दलितेसु मतलब नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के उदित होने पर मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, जिसके मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जीव लोके यानी इस संसार लोक में निष्पन्न शालिवन शालिनी, यानी जो चावलों की खेती से युक्त, जब आपको पता है कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि चावलों की खेती पूरी पक जाती है और पकने के बाद में जलधरे जल भार नम्रे कार्यम कियत जलई, यानी जो जलधर मीन्स जल को धारण किया है जिसने, वो कौन है? बादल। यानी बादल कैसे हैं? जल के भार से झुके हुए हैं। तो जब खेती पक जाती है उसके बाद में पानी से भरे हुए बादलों के झुकने से, अर्थात बादलों के गरजने से, बरसने से
क्या फर्क पड़ता है, अर्थात कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। खेती वालों को खेती मिल जाती है, उसके बाद में बादल बरसे या न बरसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जिनके कर्म रूपी खेती पक चुकी है, उसके लिए सूर्य और चंद्र की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम भी अपने भीतर में ये संकल्प जगाएं कि हम भक्तामर का उच्चारण करें, तो हमारे भीतर में भी वैसा प्रकाश हो, बाहर के सूर्य चंद्र जैसा नहीं, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश हो। ओ लॉर्ड, where is the need of the sun during the day and the moon during the night, when your ever radiant face sweeps away the darkness in this living world? Once the crop ripes, what is the need for the rain clouds? यानी हे नाथ, तुम्हारा मुख चंद्र अंधकार को नष्ट करता है, फिर रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन? इस जीव जगत में जब खेतों में धान पक चुका है, फिर जल के भार से झुके हुए मेघों से क्या प्रयोजन? तो इस प्रकार हम इस श्लोक का उच्चारण, किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी यूज करता है तो उस मैली विद्या को शांत करने के लिए सबसे अच्छा श्लोक है। हे नाथ, ओ स्वामीन, ओ लॉर्ड, तमस्सु संपूर्ण अंधकार, टोटल डार्कनेस, युष्मन आपके योर मुखेंदु मुख चंद्र द्वारा मून लाइक फेस दलितेषु नष्ट कर दिए जाने पर, ऑन डेस्ट्रॉयड सर्व ऋषु रात्रि में एट नाइट, शशि ना वा चंद्रमा मून एंड अन्नी दिन में इन द डे, शालिनी मतलब धान्य ग्रेन, निष्पन्न राइपन पक जाने पर, जल भार जल से बाय वाटर, नम्रई धान्य के ग्रेन, शाली वन खेतों में इन द फील्ड्स। किम कार्यम क्या प्रयोजन, व्हाट इज द नीड ऑफ, जले बादलों से बाय द क्लाउड्स, कियम क्या व्हाट विवस्वतावा सूर्य से बाय द सन, जीवलों के संसार में इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट हम करेंगे 20वां श्लोक। तो आज का क्लास ओम अरहम। अब आपकी जिज्ञासा, हमारे समाधान। बोलिए, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। नहीं, आपने जो बोला 3 तरह के जो कफ पात जो है, वात पित्त और कफ। हाँ, अभी आपको सबको नाड़ी देखना भी सिखाते हैं वात पित्त और कफ के आधार पर आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। इनका जो इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और 5 एलिमेंट है जो, इनका जो कनेक्शन कब से पता चला? ये तो आदि युग से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तो हम कब से भगवान हमारी, ये तो एक नेचुरल, अपन कहते हैं ना, ये मिट्टी की काया और मिट्टी में मिल जाएगी, कब से? ये तो प्राचीन समय से। जो पित्त बात और उसका कब से हुआ? वात पित्त कफ का जब से शरीर बना तब से हुआ उसका संचालन। नहीं, मेरा कहने का ये जो साइंस आई है, जो दोनों की इंफॉर्मेशन आई है, ये साइंस तो अभी जन्मा है, और अपने भगवान महावीर और भगवान ऋषभ ने जो चीजें कही ना, साइंस तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं आयुर्वेद की साइंस की बात करता हूँ, अपने मॉडर्न साइंस की बात नहीं कर रहा। हाँ, जो 5 तत्व का शरीर है, और उसके साथ ये आपने 3 जो बताए हैं, वात पित्त कफ, पित्त, उसका कनेक्शन कब हुआ? शुरू से ही है या बाद में लगा? शुरू से ही है ये चीजें, तो शुरू से ही आयुर्वेद को आप स्टार्टिंग से ही, कोई जब से हमारी चिकित्सा पद्धति चली है तो सबसे प्राचीन हम आयुर्वेद ही मानते हैं, जो नेचुरल जड़ी बूटियां हैं हमारा। तो अगर आपको समझना है तो हम आपको नाड़ी देखना भी अपन बता सकते हैं। प्राचीन जमाने में कहाँ होते थे डॉक्टर्स लोग? नाड़ी के आधार पर ही तो पूरा आपका शरीर का बता देते सिस्टम। नाड़ी वैद्य देखते ही बता देते थे आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप सभी देखो, आपके यहाँ पे नाड़ी चल रही है, अंगूठे के रिस्ट का जो भाग है वहां पे देखो आपकी 3 नाड़ियां चल रही है। 3 नाड़ियां चल रही। जो फर्स्ट नाड़ी होती है वो वायु की होती है, सेकंड होती है वो पित्त की होती है, और थर्ड होती है वो कफ की होती है। खुशी, यहाँ पे देखो, रिस्ट को छोड़ के आगे, रिस्ट के भाग को छोड़ दो, उससे आगे थोड़ा सा प्रेशर देना होता है अंगुलियों से, 3 अंगुलियां, उसके टॉप भाग से हल्का सा पुश करो। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे करो। ये कौन है? डोली जी, उस साइड से आओ,
अंगूठे के साइड में आपको आना है नीचे से, आप अपोजिट किए हो। हाँ, अब राइट पकड़ा आपने, एकदम राइट। अंगूठा ऐसे रहेगा पीछे और अंगुलियां ऐसे रहेगी। ऐसे क्या नानी? हाँ, यहाँ पे अंगूठे के भाग को, रिस्ट को छोड़ के आगे। पर हमको पता कैसे यहाँ पे चलेगा कि रिस्ट अभी के कौन सी बाद, तकलीफ है? खुशी रिस्ट के बाद, इतना ऊपर नहीं जाना। रिस्ट का है आपका, ये है रिस्ट, नहीं ये वाला अंगूठे के सिद्ध में जाएगा, अंगूठे के सिद्ध में देखो। हाँ, वेरी नाइस, सही पकड़ रही है। यहाँ पे देखो 3 नाड़ियां चल रही, किस किस को पकड़ में आ रही है। एकदम अंगूठे के सिद्ध में चले जाओ, नीचे नहीं जाना है, अंगूठे के सिद्ध में। 3 नाड़ी तो चल रही वंदा में, पर ये कैसे पता चलेगा कि ये कफ की अभी है अभी या... अभी आपको बताती हूँ ना, 3 नाड़ियां चलती को कैसे पता चलता है, वही बता रही हूँ। पकड़ में किस किस को आई पहले तो ये बताओ। खुशी आई आपको पकड़ में? हाँ आई मुझे। प्रतिभा जी आई, सरोज आई आपको? पकड़ में आई। ये रूपम कौन है? रूपम जी फर्स्ट टाइम देखा है मैंने आपको। रूपम को रेणु की बहन है। ओ, रेणु की बहन है, वेरी नाइस। चलो शशि जी आई पकड़ में आपको नाड़ी? मतलब नहीं, अच्छे से नहीं समझ आया। 3 नाड़ियां चलती। कभी आओगे ना इधर, कभी आना होगा ना सेंटर में। किसका? मुझे नहीं पता कुछ भी। तो अभी मेरा आज 4 मिनट कम है, लेकिन अपन क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, दूसरा कोई प्रोग्राम है तो सॉरी, हम 4 मिनट पहले। और सबसे आज की क्लास का मैं नेक्स्ट सिखाऊंगी आपको। अभी ये हमारा 1 महीना तक मुद्रा विज्ञान पूरा चलेगा, आपको रोज 2-2 मुद्राओं के आधार पर सिखाएंगे, लेकिन इन 2 मुद्राओं का उपयोग करना है। आप ये ज्ञान मुद्रा में आगे के टिप्स दबा के रखो और 3 अंगुलियां एकदम स्ट्रेट आगे के देखो। आप 5 मिनट, हाँ आगे के टॉप भाग है ना, उन दोनों पे प्रेशर डालो, तब आपको पता चलेगा वाइब्रेशन हो रहे ब्रेन में। नीचे 45 मिनट्स तो हाँ, कर 45 मिनट्स करते तो उसका बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, नहीं तो 20-20 मिनट दिन में 2 बार ओके ओके, सो यू कैन डू लेस, यू कैन डू लेस। हाँ। सो लाइक और ये है आपकी, जब भी आप खाना खाएं इस मुद्रा में बैठे। आचार्य तुलसी फरमाते थे कि ये मुद्रा प्लस वज्रासन में बैठ जाएं तो आपको कभी पैरालिसिस नहीं होगा। ओके ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, टाइम हो रहा है, हमारी दूसरी क्लास है तो सॉरी, आज 3 मिनट पहले एंड कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा। थैंक यू समीर जी। साबुन के नाम। हाँ, इस क्लास का टैक्स है अभी हमारा कम हुआ। अब हम कोशिश करेंगे इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, चाहे हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट आप सभी को टैक्स वापस लगा रहे हैं, एक बंदा नया लेके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है, सबको ट्राई करना है, जो 1 लाएंगे उसको 1 साधुवाद, जो 2 लाएंगे उसको 2 साधुवाद, जो 3 लाएंगे उनको 3 साधुवाद, ठीक है? आपके बहुत आभारी हैं समझी जी। थैंक यू अरविंद भाई, सभी ट्राई कीजिए। हम इस अरविंद भाई के बर्मिंघम आश्रम में 50 लोग कम से कम जुड़े, ताकि अरविंद भाई को खुशी होगी। जितने सब लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। और अरविंद भाई वापस सबको मैसेज दीजिए प्लीज, अपना जो जितने बर्मिंघम के 20 लोग जुड़ते थे उन सबको बोलिए वापस, हैं? Okay, everybody, next Sunday, same time. Thank you. Bye. Thank you. Bye. सरोज बहन, बहुत अच्छा जी आपका। ये आपका दोता है या पोता है? पोती है। अच्छा, बहुत अच्छा। शशि बहन, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। मृदुला जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शिवानी एंड रूपम, ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर, है ठीक। मैं भी अरविंद भाई। हाँ वो कहा, हाँ प्रतिभा को देखा नहीं, सॉरी। थैंक यू, सी यू देन, या।